I understand the victim and the rescuer. In the prosecution, can you just sort of explain a little as to how do they normally work? Is it just being critical and judging others, or uh, is it something हाँ, a little different? prosecutor is that like a judge. तो जो मतलब जो जज करता है ना, ये सही वो गलत ऐसे करके, तो सो विक्टिम और जो विक्टिम है वो तो एक मोड में है, वो तो अपने विक्टिम मोड में है, और रेस्क्यूअर है वो भी एक्शन मोड में है, वो भी रेस्क्यू करने के मोड में है। तो जो रेस्क्यूअर होता है वो तो जंप करता है ना एकदम से, मतलब उसको तो जैसे ही दिखता है वो जंप करता है और वो एक्शन लेता है। प्रोसिक्यूटर इज द वन हु इज पासिंग कमेंट एंड जजिंग एंड ऑल दैट, ये सही वो गलत ऐसा वैसा, वो दैट इज द प्रोसिक्यूशन। Right. But this would always be, I mean, I was just thinking, I know a single person can play these three different roles. That's what it is, right? In different situations. But it could be that some people are just in a particular role or a mode. They are stuck in that sort of mode, like a victim person who is in a victim mode will always in every situation try and see to be in a victim mode. It could happen that way also, that हाँ, बिल्कुल बिल्कुल based on, बिल्कुल yeah, okay. बिल्कुल। पर्सन हु The इज same स्टक इन with अ विक्टिम rescue, of मोड course. विल, Yeah. हाँ, तो जैसे funny things that I noticed when I was doing my coaching, learning about my coaching उस टाइम पे बहुत सारे लोग आई कम अक्रॉस हु became coaches for this reason. So they were rescuers. So they felt that they have been victimized for something and now they have to turn into rescuers. So this is one of the reasons why I made that principle कि I will not be desperate to help. क्योंकि वो desperate to help is the rescuer mode. Right. Okay. Understand? Yeah. Rescuer ही desperate होता है. Yeah, especially So if that you've is, been through a similar situation, or you've gone through हाँ, those troubles, and then you feel like you don't want another person to go through that you're so desperate correct, to help them out. Yeah. correct. तो उनकी स्टोरी सुन के, जैसे मान लो कि somebody was went through a toxic relationship, abusive relationship, उन्होंने अपने इश्यूज तो रिजॉल्व किए नहीं ढंग से, उन्होंने कोचिंग सीख ली, बिकॉज आई हैव बीन थ्रू दिस नाउ आई विल, मैंने अब झंडा उठा लिया, अब मैं बचाऊंगा, बिकॉज आई बीन थ्रू दिस, आई नो। एम्पैथी है बट अनहेल्दी स्टेट से आप लोग, Yeah. हेल्दी स्टेट से एम्पैथी आएगी जब आप इन तीनों स्टेट से बाहर निकल के एज एन ऑब्जर्वर चीजों को देखो। करो हेल्प, जिसको हेल्प की जरूरत है और जो लेने के लिए तैयार है करो, और जिसको नहीं है उससे आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर आपको तकलीफ हो रही है, आप सो नहीं पा रहे हो, आई नो सो मेनी कोचेज हु went out of business because of this reason. They burnt out. They burnt out because they couldn't help, and not because कि उनके पास स्किल नहीं थे या वो नहीं था, स्किल भी थे, इंटेंशन भी थी, बट उनकी डेस्परेशन सबसे ज्यादा थी to help someone. And if they are seeing कि the person is not moving, the person is not coming out of that mode and all that, they used to get very desperate. They used to get disturbed by that. उनको नींद नहीं आ रही है सेशन के बाद, उनको तकलीफ हो रही है, दे वर बर्न आउट बाय। पहले एक अपनी लाइफ की प्रॉब्लम थी, अब 10 लोगों की और लाइफ की प्रॉब्लम अपनी बना ली है। 10 लोगों की प्रॉब्लम सुन सुन के अब वो और ज्यादा परेशान हो गए, तो दे बर्न आउट, क्योंकि उन्होंने अपने ट्रिगर्स रिजॉल्व नहीं किए। अपने ट्रिगर्स को उन्होंने पुश कर दिया।
क्या हीलिंग वर्क किया उन्होंने मुझे नहीं पता, बट उन्होंने सेल्फ डिक्लेयर कर दिया कि आई हैव डन माई वर्क, आई हैव कम आउट ऑफ दिस. Usually people say I have come out of that is when they move out of that situation. तो लाइफ जो है वो हिमालय पे जाके नहीं जी जाती है. लाइफ तो हमको यहीं सोसाइटी में ही जीनी है, फैमिली में, फ्रेंड्स में, इन्हीं लोगों के साथ रहना है, यहीं पे रहना है. And they will keep pushing you, they will keep triggering you. So until you resolve that, somebody who's been toxic and abusive, they divorced, they separated, they went and started living in a different city altogether. अब बढ़िया चल रहा है सब कुछ because the person is not there to push them in their life and all that. तो उनको लगता है they are healed. Only when they start going in this direction and they start talking to other people, and जैसे ही दूसरे लोगों ने अपनी स्टोरी बतानी शुरू की, उनकी भर भर के उनकी मेमोरीज वापस आने लगी, उनके ट्रिगर्स वापस आने लगे. एंड दे गेट वेरी डेस्परेट कि मेरे को इनको बचाना है, मैं तो अपने आप को नहीं बचा पाया, मैं इनको बचाऊं. तो दैट डेस्परेशन किक्स इन, दैट डेस्परेशन बर्न्स देम आउट. Right. And that's a rescue mode. So there's a good chance that coaches go into that rescue mode because they feel that they have been through that and now they don't want anybody to go through. एक होगा जो झंडा उठा के खड़ा हो जाएगा, प्रोसिक्यूटर वाला, कि मेरे को अवेयरनेस क्रिएट करनी है इन सब चीजों के बारे में, ये बहुत होता है सोसाइटी में, ऐसा है वैसा है. वो झंडा उठा के खड़े हो जाएंगे, जहां कहीं भी मिलेगा लेक्चर देने लगेंगे किसी को, अनसॉलिसिटेड एडवाइस देने लगेंगे, क्योंकि उनको लगता है बिकॉज आई हैव बीन थ्रू दिस, तो लिसन टू मी, मुझे ज्यादा पता है. तो कोई मांग भी नहीं रहा उनसे एडवाइस, कोई पूछ भी नहीं रहा, कोई बात भी नहीं कर रहा, लेकिन वो जबरदस्ती का झंडा उठा के खड़े. दैट्स द प्रोसिक्यूटर मोड. Yeah. Okay. मुझे अब अवेयरनेस क्रिएट करनी है इसके बारे में. अवेयरनेस क्रिएट करो. सी, आई एम नॉट सेइंग कि अवेयरनेस मत क्रिएट करो, आई एम नॉट सेइंग हेल्प मत करो. आई एम सेइंग ओनली वन थिंग, डोंट बी डेस्परेट. आपके डिलीवरी में, आपकी बातों में वो अग्रेशन फील नहीं होना चाहिए, वो पुश फील नहीं होना चाहिए कि सुनो, अगर नहीं सुनोगे तो तुम्हारा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. वो एग्रेशन, वो पुशीनेस नहीं फील होनी चाहिए. अगर वो पुशीनेस आ रही है तो दैट मीन्स यू आर प्रोसिक्यूटर. और अगर कोचिंग करते समय आप ट्रिगर हो रहे हो और आपको अपने मेमोरीज आ रही हैं और आपको, दैट मीन्स यू आर रेस्क्यू. ये अवेयरनेस रखनी है और ये अवेयरनेस पहले एड्रेस करनी है. Before you go into start coaching somebody else, you address these triggers yourself first. फिर ऐसी स्टेट में आ जाओ जहां पे आप बता रहे हो, सुनने वाला है, जो सुन रहा है वो सुन रहा है, जो नहीं सुन रहा है वो नहीं सुन रहा है. आप हेल्प कर रहे हो, जिसको हेल्प लेनी है वो ले रहा है, जिसको नहीं लेनी है नहीं ले रहा है. आप डिस्टर्ब नहीं हो इस चीज से. आपको नहीं, ऐसा नहीं कि उसने आपकी बात नहीं सुनी, वो नहीं कर रहा हो, इतने डिस्टर्ब हो कि अब आप जाके या तो अपनी फैमिली से बात कर रहे हो, अब आपको कोई एवेन्यू चाहिए वेंट आउट करने के लिए. अब आप में इतना बिल्डअप हो रहा है कि अरे मैंने ये सुना, ये कैसे कैसे हैं, इनको ये नहीं दिख रहा, उनको वो नहीं दिख रहा है, इनको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, आपको अब आप क्लाइंट से तो डायरेक्टली नहीं बात कर पा रहे, लेकिन आपके अंदर इतना बिल्ड हो रहा है कि अब आपको एक आउटलेट चाहिए अपनी वो फ्रस्ट्रेशन, अपनी वो वेंट आउट करने के लिए. तो अगर वैसा हो रहा है, वो दिख रहा है, वो अवेयरनेस आ रही है, तो दैट मीन्स यू आर गोइंग इनटू अ रेस्क्यू मोड, यू आर गोइंग इनटू डेस्परेशन. उसको एड्रेस करने की जरूरत. Yeah. Okay. और वो एड्रेस सिर्फ और सिर्फ तभी होता है जब आप अपनी हीलिंग जर्नी कंप्लीट करते हो. और वो कैसे होता है? अपनी हीलिंग जर्नी कंप्लीट करने का मतलब क्या होता है? कि अपनी हीलिंग जर्नी कंप्लीट करने का मतलब होता है कि आपको ना इसमें वो कोलैटरल ब्यूटी दिख गई है कि इस फेज से गुजरना पड़ता है, इस फेज पेन से गुजरना पड़ता है, तभी ये चेंज आता है. तो अगर कोई इस फेज से गुजर रहा है
तो उससे आपको डिस्टरबेंस होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप तो खुद इस फेज से गुजर चुके हो। आपको तो पता है कि इस डिस्टरबेंस से, इस फेज से, इस पेन से गुजर के ही हीलिंग हो पाएगी। तो डेस्परेशन किस बात की? कोई पेन में है तो है, assist them, Yeah. support them, empower them। तो आप में वो ग्राउंडेडनेस, कामनेस तभी आ पाएगी जब आप वो पूरी साइकिल खुद कंप्लीट कर लोगे। कोई बात नहीं, हो जाएगा। आई हैव कम आउट, विल ऑल्सो कम आउट। बस करते रहो। तो यू गिव देम, यू एम्पावर देम with that kind of assurance, with that kind of thing कि you are going on the right track। अगर आपको ये फील भी हो रहा है, अगर ये पेन, ये बहुत भारी लग रहा है एंड ऑल दैट, यू आर ऑन द राइट ट्रैक, होना ही चाहिए। इसीलिए मैं अभी इतनी देर से इसी चीज पे फोकस, अब आपका ध्यान ला रहा हूँ कि कोई अगर पेन में है तो उसको ना जल्दी से मूव मत कराओ। स्टे विद देम इन दैट पेन। You will be able to stay with them in that pain if that pain doesn't disturb you anymore. Yeah. If that pain disturbs you, then you will not be able to be in the pain with them. इसका मतलब अभी भी आपने उसकी कोलैटरल ब्यूटी देखी ही नहीं है। आपको ये समझ ही नहीं आया है कि पाथ ही यही है, ये आग में से गुजरना ही पड़ेगा। आप गुजरे ही नहीं हो खुद ही, आप खुद ही अपने आप को बचा के रखा हुआ है आपने उस आग से। तो आप उसको भी बचा रहे हो, उसको भी सरकमवेंट करने की कोशिश कर रहे हो, बाईपास करने की कोशिश कर रहे हो। कुछ अच्छा सोचो, कुछ बढ़िया ये देखो, अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स के ऊपर फोकस करो, अपना ये करो। तो ये तो सारे ही लोग करते हैं इस तरह से, तो हर कोई बात करता है उनसे, क्योंकि कोई आग से गुजरना नहीं चाहता। पर आप उस आग से गुजरे होगे तो आपका जब सब जला होगा तभी आपको पता है ना कि ये आग में से गुजर के ही जलेगा, बाहर बाहर खड़े होकर नहीं जलने वाला है। इसमें से गुजरना पड़ेगा, तभी ये सारी इनसिक्योरिटीज, फियर जलेंगे। तो अगर वो फील कर रहे हैं, अगर वो हीट फील कर रहे हैं, तो मतलब दे आर ऑन द राइट ट्रैक। यहाँ पे कुछ भी शॉर्ट करने का है ही नहीं। एनकरेज देम टू बी इन इट, एनकरेज देम टू फील इट फुल्ली। यही रास्ता Right. है, Okay. ये रास्ता ऐसा ही फील होता है। और वो सिर्फ वही इंसान बता सकता है जो उस रास्ते पे चला है। जो उस रास्ते पे चला नहीं है ना, वो ये बात नहीं बता सकता कि यही रास्ता है, ऐसा ही फील होगा। नहीं चला, वो खुद ही नहीं चला, उसको कैसे पता कि यही ऐसा फील होगा? आप चले हो तो आपको पता है कि हाँ ऐसा फील होता है, बिल्कुल ऐसा फील होता है, ये सही है, यू आर ऑन द राइट ट्रैक।